dear students. So in the previous chapter we have studied about what is crop production and management. Now we start with what is an irrigation. Irrigation. Irrigation is providing water to the soil. Providing water to the soil or the crops is called irrigation. Okay. So irrigation varies from time and frequency and from one crop to another crop. Okay. So it varies from time to time, frequency to frequency, or crop to crop, and soil to soil. Okay, so what is an irrigation? Irrigation means providing water to the crops, and it also varies from time to time, crop to crop, and soil to soil. So what are the sources of irrigation? Now sources of irrigation. Irrigation कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है? Irrigation can be done through tube wells, pipes. So first thing is tube wells. Wells means kuwa, ponds, lake, river, dam. Okay, so what is irrigation? Irrigation means providing water to the crops. It can be done from time to time, crop to crop, and soil to soil. It depends upon the time and the frequency. Third thing is sources of irrigation. So what are the sources of irrigation? Irrigation किस तरह से की जाती है? First is through tube wells, ponds, lake, river, and dam. Okay. Now there are some traditional methods of irrigation. Traditional methods of irrigation means पुराने किस तरह से मेथड से इरिगेशन की जाती थी. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. So there are four methods. First is the pulley system. Pulley system, which is also called as moat. Okay, M. Second is chain pump. Third is dhegli, and fourth is the rahat or the lever system. So these are the four traditional methods of irrigation. Number one is the pulley system, which is also called as moat. Second thing is chain pump. Third one is the dhegli, and fourth is the rahat, or it is also called as lever system. You don't need to explain this, only you need to learn these points. Okay. Now next, modern methods of irrigation. So these are the traditional methods. Now we will talk about modern methods. Modern methods of irrigation. Methods of irrigation. There are two modern methods. First is the sprinkler system. Sprinkler system, and second one is the drip system. Drip system. Okay. So what is a sprinkler system? A sprinkler system is useful on uneven land. जहाँ पे अनइवन, ऊबड़ खाबड़ जो लैंड होता है, वहाँ पे जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं. इसमें एक पाइप चला दिया जाता है. वो पाइप के अंदर पानी होता है जो कि पाइप्स के थ्रू जाता है. सेकेंड इज द ड्रिप सिस्टम. इसमें क्या होता है कि वाटर फॉल्स
drop by drop directly near the roots, directly near the roots. ओके, इसमें वाटर को एक एक ड्रॉप से डायरेक्टली रूट्स के अंदर डाला जाता है, उसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम. सो what are the traditional method of irrigation? There are 4 traditional methods of irrigation. Number one is pulley system, number 2 is the chain pump, number 3 is the dhekli, and 4th is the dahat system. Now we talk about the modern methods of irrigation. There are 2 modern methods. First is the sprinkler system, second one is the drip system. Sprinkler system कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे uneven land होता है. एंड ड्रिप सिस्टम कहाँ पे होता है? इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है रूट्स के अंदर डायरेक्टली. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. इसमें क्या होता है कि अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होता है, अपने आप ग्रो करते हैं नेचुरली किसी भी प्लेस पे. ओके, दे कैन ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. क्रॉप के साथ वो नेचुरली कहीं भी ग्रो हो जाते हैं with the crop. Okay, so these undesirable plants, ये जो undesirable plants होते हैं उनको क्या कहते हैं? weeds. Plants are called weeds. So weeds क्या होती है? weeds होती है undesirable plants which are grown on the surface are called as weeds. कोई भी ऐसा जंगली प्लांट जो कहीं भी उग जाए उसको क्या कहेंगे? वीड. ओके, और वी कैन ऑल्सो से, और इसकी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है कि रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. ठीक है. सो व्हाट आर वीड्स? वीड्स होता है अनडिजायरेबल प्लांट्स, उनको कहते हैं वीड्स. वीडिंग होती है रिमूवल ऑफ वीड्स. वीड्स को जहाँ पे रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग. ओके, एंड वन टर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज वीडीसाइड्स. सो व्हाट इज वीडीसाइड्स? वीडिंग, दिस इज वीड, एंड अदर टर्म इज वीडीसाइड. Weedicides are the chemical which is used, chemicals which are used to control the weeds. Control the weeds. इसका मतलब है वो केमिकल जिनको यूज किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं वीडीसाइड्स. ओके, इनको वीडीसाइड्स कैसे यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं स्प्रे करके. वीडीसाइड्स को, वीडीसाइड्स वीडीसाइड्स को स्प्रे करते हैं, आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स. ग्रोथ of weeds before flowering and seed formation. Okay, so first thing we will talk about protection from weeds. weeds को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है? इसके अंदर फर्स्ट टाइम आता है व्हाट इज वीड. सो वीड्स आर दी अनडिजायरेबल प्लांट्स. वो जंगली प्लांट्स जो कि अपने आप ग्रो कर गए हों उसको कहते हैं वीड्स. वीडिंग क्या होता है? जहाँ पे इन वीड्स को रिमूव किया जाता है उसको कहते हैं वीडिंग. और वीडीसाइड्स क्या होता है? वो केमिकल जो कि यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए वीड्स को, उसको कहते हैं वीडीसाइड्स. अब वीडीसाइड कैसे डाला जाएगा? केमिकल है तो इसको स्प्रे करना पड़ेगा. तो वीडीसाइड्स स्प्रे होते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे. जब कोई वेजिटेबल ग्रो करेगा
उस टाइम पे उसको स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, जब कोई भी पेड़ पौधा जो है उसमें वेजिटेबल्स ग्रो करने लगेंगे, लेकिन उसमें जब फ्लावर्स आए और सीड्स हो, उससे पहले पहले केमिकल को छिड़क दिया जाएगा, ओके, स्प्रे कर दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस होती है वीडीसाइड्स, ओके। नाउ फिफ्थ मेथड इज द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज हार्वेस्टिंग? ये मेथड होता है जो हमने पहले भी पढ़े थे, 5 मेथड्स, उसके टाइम पे आया था ये हार्वेस्टिंग वर्ड। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप बिफोर इट इज मैच्योर इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को कट कर देना उससे पहले कि वो मैच्योर हो जाए, बन जाए, लंबी लंबी क्रॉप्स आ जाए, उससे पहले उसको काटना, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग, ओके। न्यू टर्म इज यूज्ड एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच grain seeds are separated from the chaff, separated from the chaff। थ्रेशिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे कि ग्रेन की जो सीड्स हैं उनको सेपरेट किया जाए शेफ से, मतलब एक जगह पे बल्क में उग रही हैं सीड्स, तो उनको उधर से अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट टर्म यूज इज विनोइंग। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स। विनोइंग क्या होता है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, farmers with small holdings of land do the separation of grain, do the separation of grain and chaff by winnowing। विनोइंग एक प्रोसेस है जिससे कि जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड है, वो सेपरेट करता है ग्रेन को और शेफ को, तो जो प्रोसेस वो यूज करते हैं उसको कहते हैं विनोइंग। सो दीज आर द 3 टर्म्स यूज। फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप्स बिफोर दे आर मैच्योर और दे आर फुली ग्रोन, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। सेकेंड थिंग इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस जिससे कि ग्रेन सीड्स जो होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है शेफ से। नंबर 3 इज द विनोइंग। इसमें फार्मर जो होते हैं जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता है वो क्या करते हैं? ग्रेन को और शेफ को सेपरेट करते हैं, जिस प्रोसेस से उसको सेपरेट करते हैं उसको कहते हैं विनोइंग, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इसमें अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लंबे टाइम तक कहीं पे रखना है तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है। तो हम उसको स्टोर कहाँ करते हैं? बोरियों में स्टोर करते हैं, बिग बिग फैक्ट्रीज में स्टोर करते हैं। घर में अगर हमको स्टोर करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है? नीम की लीव्स की ज़रूरत होती है। सो व्हाट आर स्टोरेज यूज? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, सो दे शुड बी सेफ। स्टोरेज के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सेफ हो स्टोर के लिए प्लेस। दे शुड बी सेफ फ्रॉम, कहाँ से सेफ होनी चाहिए? मॉइस्चर से, मॉइस्चर से, सनसेट से, सनसेट से, रेन से, रैट से, एक्सेट्रा, ओके। तो स्टोरेज क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। कोई भी ग्रेन को स्टोर करने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए होगी। उस प्लेस में हमें क्या चाहिए कि वो प्लेस जो है वो सेफ हो, मॉइस्चर से सेफ हो, सनसेट से सेफ हो, रेन से सेफ हो, रैट से सेफ हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे भी सेफ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट दिस, और वी कैन से लास्ट टॉपिक, इज द एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एन एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री।
So animal husbandry is the agriculture branch, or we can say branch of agriculture where animals are reared, bred, breed and raised. ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जहाँ पे कि एनिमल्स को रियर किया जाता है, रखा जाता है, ब्रीड किया जाता है और रेस किया जाता है। मतलब उनको वहाँ पे उस प्लेस पे रखा जाएगा, उसके बाद उनको खाना दिया जाएगा और फिर उनको बड़ा किया जाएगा। तो वो प्लेस होती है एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये सब क्यों किया जाता है? दे आर डन फॉर, उनकी मीट के लिए किया जाता है, एग्स के लिए किया जाता है और मिल्क के लिए किया जाता है और अदर फूड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज एन एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच है एग्रीकल्चर की वेयर द एनिमल्स आर रियर्ड, रखा जाता है जहाँ पे उन्हें, दे आर ब्रीड मतलब उनको खाना खिलाया जाता है, एंड दे आर रेज्ड जहाँ पे उनको बड़ा किया जाता है। और ये किस पर्पस के लिए किया जाता है? फॉर देयर मीट, फॉर देयर एग्स। एंड को क्यों रखा जाता है? उनके एग्स के लिए रखा जाता है या मीट के लिए रखा जाएगा। मिल्क के लिए काउस को रखा जाता है, गोट्स को रखा जाता है, एंड फॉर अदर फूड प्रोडक्ट्स। तो इन एनिमल्स को अगर किसी एक जगह पे रखा जाएगा तो किस लिए यूज़ कर सकते हैं? उनको अदर फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दे आर ऑल द एनिमल हस्बेंड्री। ओके, this is all about this topic. Animal husbandry is over. Now certain important terms which we have used, we will study about that quickly. So important definitions are definitions. What we studied about irrigation. First is the irrigation. What is an irrigation? Irrigation means providing crops, providing water to the crops is called as irrigation. Second thing is harvester. हार्वेस्टर क्या होता है? मशीन जिसमें कि क्रॉप्स को काटा जाता है उसको कहते हैं हार्वेस्टर। सो मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, उसको कहेंगे हार्वेस्टर। नंबर 3 इज स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? हमने अभी पढ़ा है। स्टोरेज क्या होता है? वो जो कि सेव करता है मॉइस्चर से, सनसेट से, रेन से, और स्टोर किया जाता है किसी भी कटी हुई क्रॉप को, उसको कहते हैं स्टोरेज। नंबर 4 इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? प्रोसेस जिससे कि ग्रेन को शेप से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको कहते हैं विनोइंग। एंड नंबर 5 इज प्लो। प्लो क्या होता है? प्लो को यूज किया जाता है फॉर नंबर 1 टिलिंग द सॉइल, टिलिंग द सॉइल, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, एडिंग। एंड नंबर 3 इज रिमूविंग द वीड्स। ओके, सो प्लो को यूज कैसे करते हैं? प्लो को यूज करते हैं सॉइल को टिल करने के लिए, लूज करने के लिए, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, एंड थर्ड थिंग इज रिमूविंग द वीड्स। So thank you. This is all for this chapter.